Right, welcome back to Southend Cricket Club, where we're all set for the first T20 international between Pakistan and the Windies women cricket teams. Windies have won the toss and elected to bat first. Joining me in the comm box is ex-Pakistan women cricket team captain Uruj Mumtaz. Uruj, interesting decision to bat first by the Windies. Yeah, especially with Sikandar Buck's report of the pitch, it was quite interesting that they chose to bat first because he's played a lot of cricket, like you earlier mentioned, on this wicket, so he would have known the ins and out. And he mentioned that the ball might hold up a little bit and swing a little bit because of the rain, especially. So if it does actually work out to what he said, it might be an advantage for us because the Windies might have to see the ball for the first couple of overs, minimizing the effect of the first six. We have the teams up on screen right now, and if we run through the lineups, Bisma Maroof, Sidra Nawaz, Javeria Khan, Sidra Amin, Iram Javed, Umaima Suhail will be one to watch out for. Recently did a debut in Malaysia against Australia and had a good innings with a top score of 43 already. Nida Dar obviously and Alia Riaz, two hard-hitting all-rounders in the middle there. Sana Mir, we all know, will play a very crucial part if she can get a quick few, because she might just come into bowl a lot earlier than we would have want than the normal circumstances. And Ayman Anwar and Nashra Sandhu. Nashra again, a left arm orthodox, taking the ball away from the batsman. Will be interesting to see how she comes along. Exceptional stuff by Nashra, keeping in mind that Pakistan hasn't had the opportunity to play on their home turf. Absolutely. And Kaisia Knight will be opening for the Windies and will be taking the first ball, left-handed batswoman. Danish will have to be very careful here because it will not be batsmen anymore. Interesting pick by Pakistan today for their 11. Alia Riaz will be opening the attack. There's no Diana Baig, interestingly, in this 11 that Pakistan has picked today. So they've gone with the one medium pacer and spin attack. Right, Danish, so we have two fielders and Ayman comes in for a first ball now. So beautifully played through the covers. That might just run away to the boundary. Kasia Knight starts off with the boundary through the offside, bringing on a good start for the West Indies here. The outfield, as usual, lightning fast here at Southend Cricket Club. All you need to do is connect the ball, time it well. You don't need to hit it too hard to get a boundary. There you go, ball going away from the left-hander. I feel a slip here, Danish. Obviously, we're playing at home, put the pressure on, first 6 overs. They don't really know how the pitch is going to play. There you go, West Indies doing what they do best, hitting through the line. Deandra Doughton hits over the mid-off for 4. She charged at it, playing it over mid-off, getting a 4 out of it. Right, Danish, absolutely. Hitting through the line without any pressure on her. One bounce to the boundary for 4. It'll be interesting to see how Ayman adjusts her line here. A third man comes up. Both the opening batters taking initiative and taking Ayman for runs, which he likes going after. And that might just be, that goes sails over the head for 6. We had a fielder back there at deep cover, but Doughton has the power to clear the boundary. Well, that was a one bounce for just over Alia Riaz's head. Exceptional power there by Doughton, picking that ball up. No pace provided by Nida Dar. Doughton did all the work there and went for a maximum crazy shot. And one on the boundary. Played it straight there, straight as an arrow, bisecting both the fielders for a 4 yet again. End of the over, it's 23 without loss, the Windies. I think what Doughton has as an option is going either straight or over the mid-off circle fielder. Using her feet this time, played towards long on, and will get 2 out of it. Sana will be looking to restrain the flow of runs, but at the same time she'll be looking for wickets as well, because she needs to break this partnership. It's turning into a really dangerous one for Pakistan. Scary. Last ball of the over. Shot!
That was exceptional stuff. It wasn't that short, it wasn't that full. It was pretty spot on by Sanamir, but wow, what a brilliant strike that was. Danish, welcome to women's cricket. Not any different to men's cricket, is it now? Like you said, well pitched up delivery, but that's the hand-eye coordination and the brute force that Deandra Doughton has. We see the replay there. I've seen men struggle with that kind of force. This is exceptional stuff. Hit straight over the bowler. Sidra Amin down at the boundary doing a wonderful job restricting the batsman to 2 runs. Well, lucky for the batsman that wasn't timed as well as you would have hoped, because Sidra might have just had been in a chance with there. Now we understand this is aggressive batting, but Well calculated shots, and again they've got the power to back them up with. Keeping low there, and that's the first wicket for Pakistan. Brilliant catch by Ayman Anwar at short square leg. First wicket by Nashra. That line actually paid off. Kasia Knight has gone for not so many, and Pakistan has the first wicket there. that was a brilliant catch by Ayman there, diving in front, making sure she had her hands under the ball. Lots of concentration. The ball kept low there. It was an upper edge. Oh, what a catch, Shuruj. Brilliant catch. Ayman, one of the fitter, one of the better fielders on field. That always makes the difference. But interesting to see Danish there. The ball kept quite low. Not a very good delivery. Obviously, she got a wicket off it, but that was going down the leg side. We see Campbell walk in. Shemaine Campbell, shirt number 30, walk in and take guard. With 2 right-handers on strike now. Pitching it up slightly, very well bowled by Nashra, and you can see the batsman a bit edgy when the ball is pitched in the right lines. That's 4 overs. West Indies 34 for 1. To get our first next few breakthroughs, Danish, because like you said, Doughton really need to head back to the hut for Pakistan. Pitched up this time, hit well, straight to the fielder, and it's a drop catch. That is a big loss for Pakistan. Oh, that should have been caught. Danish, pretty simple chance. Oh, she almost had it. She Just had got it, but out. नशरा एक मरतबा फिर आई गेंद की और इस बार ड्राइव किया है सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जवेरिया के 4 रन्स के लिए Everything towards the long off. Stephanie Taylor, and she has been hitting towards the long off. There is no long off against the spinner. एक मरतबा फिर और इस बार पिछले कदम पर जाकर डोटन ने आहिस्ता से गेंद को खेला कवर में रन बनाने का मौका था दोनों बैट्समैन इसके लिए तैयार नहीं थी तो रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं मिला और इसी के साथ छठा ओवर खत्म हुआ और ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर साउथ एंड क्लब का फिजाई मंजर 5 जनवरी 1987 को गुजरावाला में पैदा हुई निदा डार जो अपना तीसरा ओवर करने के लिए तैयार है आई गेंद की और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया 2 फील्डर गेंद के पीछे हैं और जब तक सना मीर गेंद तक पहुंचती गेंद को उठाती और थ्रो करती 2 रन दोनों बैट्समैनों ने आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया और इसी के साथ वेस्ट इंडीज की इनिंग के 50 रन मुकम्मल हो गए Once again, bowling outside the off stump. Though she has 3 fielders on the line on the onside, 2 fielders, but still she's bowling outside the off stump. निदा की अगली गेंद जिसे ऑन साइड पर अपनी खिलाड़ियों की मदद से मोड़ दिया और तेजी के साथ एक रन मुकम्मल किया और दूसरा रन भी लेना चाहती हैं यस नो और इस बार गालिबन सिदरा नवाज ने आउट कर दिया है पहले निदा डार ने बैट्समैन को आउट करने की कोशिश की और तीसरे अंपायर की तरफ फैसले को रेफर कर दिया है अंपायर ने Sensible throw by Sidra, and I think they got the wicket. She's out. तो दूसरी कामयाबी अंपायर एहसन रजा ने अपने हाथ से लाल बटन को प्रेस किया और कैम्बल 4 रन बनाने के बाद निदादार की थ्रो पर सिदरा नवाज के हाथों रन आउट हुई तो 51 वेस्ट इंडीज 2 विकेटों के नुकसान पर
तो अब यहाँ साउथ एंड क्लब कराची में 2 विकेटें वेस्ट इंडीज की गिर चुकी हैं। 51 स्कोर है, 90 ओवर का खेल जारी है और निदा डार जो कि अभी तक पहली कामयाबी के मुंतजर हैं। निदा डार ने पाकिस्तान के लिए पहला T20 इंटरनेशनल 6 मई 2010 को खेला था। तैयार हैं अगली गेंद करने के लिए। निदा डार एक मरतबा फिर तैयार हुई, जोरदार तरीके से खेलना चाहती थी। एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर अपनी जगह मौजूद और कोई नुकसान नहीं। 62 विकेटें हासिल कर चुकी हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में निदा डार। Well, she's bowling round the wicket, so it will be difficult to get a leg before decision from that angle. बड़ी दिलचस्प बात है कि निदा डार ने भी 8 नंबर की शर्ट पहनी हुई है और जो नई बैट्समैन आई हैं जो निदा का सामना कर रही हैं उन्होंने भी नंबर 8 की शर्ट पहनी हुई है और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। लेकिन इस बार थ्रो बिल्कुल दूर थी, वरना ये भी शायद रन आउट होने का मौका होता, जो नहीं हुआ। तो 9 ओवर का खेल वेस्ट इंडीज की इनिंग का अपने अख्ताम को पहुंचा। 2 विकेटों के नुकसान पर वेस्ट इंडीज का स्कोर 53। आलिया रियाज एक मरतबा फिर आई गेंद करने के लिए डॉटन को और इस बार डॉटन ने गेंद को उठा दिया है। बहुत दूर से भागकर आना पड़ेगा सना मीर को, लेकिन वो गेंद तक ना पहुंच सकी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बारह ओवर्स मुकम्मल हुए, 70 पर 2 खिलाड़ी आउट हुए विंडीज टीम के। Dotton still the danger woman for Pakistan, playing on 43. She's batted exceptionally well. 37 balls faced by Dotton there. Dotton showing what she can do, exactly how much power she has. That was flighted. The ball had a lot of loop on it. She went down on one leg and thrashed the ball towards square leg for a 6. Oh, that was such a powerful strike. स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से ये डॉटन ने। That is not an easy shot to play, especially when there is no pace on the ball. Oh, that was well hit. More towards the middle that time. Swept again towards square leg for a single. Sensible batting there by Dotton. डॉटन ने 51 रन बनाए हैं 41 गेंदों पर, जिनमें 2 छक्के और 5 चौके। तो 14वां ओवर दानिश अब शुरू होता हुआ। Oh, what a shot that one! Clearing the field, clearing everybody, clearing the ropes for a maximum. Brilliant stuff. साउथ एंड क्लब में जो जॉगिंग ट्रैक है वो भी क्रॉस कर गया है और जबरदस्त छक्का मारा है। तो इसी के साथ विंडीज की इनिंग के 100 रन मुकम्मल हुए। 16वें ओवर की पहली गेंद पर विंडीज के 100 रन यहाँ मुकम्मल नहीं 99। अब इस 2 रन के साथ वेस्ट इंडीज का कुछ स्कोर बोर्ड में यहाँ पर प्रॉब्लम है। जो हमारे पास रन शो हो रहे हैं वो कुछ और हैं और टेलीविज़न जो स्कोरर हैं उनके और ग्राउंड स्कोरर के दरमियान कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त ग्राउंड में स्क्रीन नज़र आ रही है, उरूज उस पर 103 का हिस्सा जगमगा रहा है। Well, thank you so much, Aruj. You know what? A lot of girls out there supporting our girls. Well, actually, not just our girls. These girls are clapping at every ball and supporting the West Indian team as well. So right now, the West Indians look really good. We're supporting Pakistan as well. अच्छा, बहुत सारी टीचर्स भी आई हैं जब बच्चों को लेकर आके। तो ये क्या हो कि पढ़ाइयाँ शराइयाँ नहीं हो रही हैं, मतलब कि यहाँ के मैच है लेकिन पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो क्रिकेट आया है और वेस्ट इंडीज़ जो अभी आई है, कहीं से टीम ही नहीं आ रही थी। इतने सालों के बाद क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना बहुत अमन पसंद जो है ना शहरी है, यहाँ पे अमन पसंद हम लोग हैं। और हमारे पास कराची वाले देखेंगे, कराची शहर जो है ना आज कितना खुश है और कराची पूरी कराची हमारे साथ है।
और इस बार नेशन ने गेंद को उठा दिया है हवा में। जवेरिया गेंद के नीचे जरूर आई, लेकिन फिर उन्होंने गिव अप कर दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर ने राशिद रियाज ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, छक्के का इशारा। तो अब जिस तरह ये इख्तितामी ओवर्स अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं, विंडीज की बैटर्स की जारहाना बल्लेबाजी। जी हाँ, और जारहाना बल्लेबाजी ना सिर्फ अब डॉटन की तरफ से, बट नेशन ने भी अग्रेसिव स्टांस ले लिया है। और जिस तरह आपने कहा कि जवेरिया के सर के ऊपर से बहुत आसानी से ये हम रिप्ले देख रहे हैं, बॉल कंफर्टेबली लैंड इनटू द स्टैंड्स। और इस बार पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को कट करना चाहती थी नेशन, लेकिन सिद्रा नवाज के हाथ में बॉल। एक मरतबा फिर से ना राइट आर्म अराउंड द विकेट आई गेंद की, और इस बार नेशन ने गेंद को उठा दिया है। गेंद एक टप्पा खाने के बाद संधू की तरफ, और 2 रन दोनों बैट्समैनों ने आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। सना की अगली गेंद जिसे नेशन ने ऑन साइड पर खेला, और गेंद फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। विंडीज अब आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कोर को आगे बढ़ाती हुई 125 2 विकेटों के नुकसान पर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रन है आखिरी ओवर्स में। और जितने रन बनाएगी विंडीज की टीम, उतना प्रेशर पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर क्रिएट करेंगे वो। और फिलहाल तो इस स्कोर को आप किस तरह देख रही हैं उरूज? याया भाई, आई थिंक ये ऑलरेडी एक कंपेटिटिव टोटल हो चुका है। 125 65 मीटर्स की बाउंड्री है, तो हमारी टीम के लिए छक्का लगाना इतना आसान और नहीं इस बार होगा, गेंद को उठा दिया है सना मीर की। नेशन ने गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। जिस तरह से ये जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये 160 तक भी स्कोर हो सकता है। और अगर ये 160 हो गया, ये हम रिप्ले देख रहे हैं। ब्यूटीफुल हिट ओवर मिड ऑन, क्लीन स्ट्राइक ऑफ द बॉल एंड क्लियर्स द बाउंड्री बाय ईज। इससे अच्छी बल्लेबाजी आप देख नहीं सकते। क्या बैटिंग कर रही हैं विंडीज की बैटर्स। जब चाहती हैं, जहां चाहती हैं, गेंद को मोड़ देती हैं। छक्के चौके से कम बात हो नहीं रही है। सना एक मरतबा फिर आई गेंद की, और इस बार भी फुल टॉस बनाया है। फील्डर गेंद के नीचे है, और ये कैच ड्रॉप कर दिया। एक आसान कैच था जो सिद्रा अमीन ले नहीं सकी, और गेंद उनके हाथ में आकर निकल गई। और सिद्रा अमीन ने 137 विकेट हासिल करने का मौका उरूज को दिया, सना को दिया नहीं। और ये वो शॉट था जो काफी देर हवा में रहा। इसे एक मुश्किल कैच तो नहीं कहेंगे, रनिंग कैच कहेंगे, जो सिद्रा नहीं ले सकी। तो और इस बार आलिया रियाज का इस्तकबाल किया है छक्के के साथ। क्या बल्लेबाजी कर रही हैं डॉटन। और गालिबन उरूज हमें बता रही हैं कि ये उस जगह पर गेंद जाकर गिरी है जो प्रैक्टिस एरिया के नेट जहां पर लगे हुए हैं। बिल्कुल ब्यूटीफुल हिट। आई थिंक कि अगर हमारे पास मेजरिंग का कोई सिस्टम हो, तो ये किसी भी दुनिया के ग्राउंड में ये छक्का होगा। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ डिएंड्रा डॉटन। तभी इनको विमेंस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन कहा जाता है। और जितना ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये आंख बंद करके अंधाधुंध खेली चली जा रही है। और इस बार नेशन ने गेंद को उठा दिया है, और किसी शक को शुबे के बगैर गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन आफ्टर 18.4 ओवर। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ डॉटन और नेशन की तरफ से। आलिया केन करेंगी अपनी आखिरी बॉल ओवर की। डॉटन इस बार तैयार हुई आलिया को खेलने के लिए, और डॉटन ने इस बार गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की तरफ। 4 रन के लिए। नशरा सांधू ने आगे तरफ गिरते हुए गेंद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रही, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इस ओवर का आगाज भी डॉटन ने बाउंड्री से किया था, ओवर का अख्तिताम भी बाउंड्री के साथ किया नेशन। एमन, और एमन की इस गेंद को ऑन साइड पर खेला है, और इस बार सिद्रा जो थी, जो सना के ओवर में कैच ड्रॉप कर चुकी थी, उन्होंने गेंद को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब रोका। 2 रन हासिल करने में दोनों बैटर्स कामयाब रहे। 152-52। एमन अनवर डॉटन को आई गेंद करने के लिए, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है। गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद काफी देर हवा में रही, लेकिन बिस्मा मारूफ और नेदा डार के बीच में यह बॉल गिरा, और 1 रन दोनों बैट्समैनों ने हासिल किया। तो 153 2 विकेटों के नुकसान पर विंडीज। एमन एक मरतबा फिर आए, और इस बार फुल टॉस बनाते हुए इस गेंद को खेला है, और एक बार फिर यहाँ पर मसरूफ नजर आएंगी हमें सिद्रा।
जो शर्ट नंबर 31 के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तालियां इस बात की गम्माजी कर रही हैं कि नेशन जो है वो अपने 50 रन मुकम्मल करने में कामयाब हुई हैं, और उन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है यहाँ पर। हाँ, 160 अगर चाहिए है तो एक बाउंड्री लगना लाजमी है, वो भी मैक्सिमम। और क्या शॉट खेली है डॉटन, बहुत दूर से भागकर आना पड़ेगा निदा को, और निदा ने बिल्कुल लास्ट टाइम पर गिव अप किया, और जो स्कोर उरूज मुमताज ने दिया था 160 उसको टच किया है इस चौके के साथ विंडीज ने। आफ्टर 20 ओवर्स विंडीज वन द टॉस और 160 रन किए उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पर। तो एक चैलेंजिंग टोटल पाकिस्तान की खवातीन टीम के लिए, और एक अच्छी परफॉर्मेंस विंडीज की इन लड़कियों की, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे अंदाज में यूटिलाइज किया बिलखुसूस डॉटन ने। और ये स्कोर कार्ड विंडीज़ का, नाइट ने 8 रन स्कोर किए, उनको अमीन ने कैच किया, निशरा बॉलर थी और 90 रन बनाकर डॉटन नॉट आउट रही, और कैम्बल रन आउट हुई और 4 रन उन्होंने स्कोर किए, और नेशन ने 50 रन स्कोर किए, वो भी नॉट आउट रही। 160 20 ओवर के बाद विंडीज ने 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर किए, 8 एक्स्ट्राज भी स्कोर में शामिल थे। पाकिस्तान के बॉलिंग की तरफ अगर हम एक निगाह डालें तो पाकिस्तान की खवातीन टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंस कुछ इस तरह आपको दिखाई दे रही है। 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया बिस्मा मारूफ ने। एमन ने 3 ओवर में 24 रन दिए, निदा ने 4 ओवर में 28 रन दिए, सना ने 4 ओवर में 32 रन दिए, निशरा सांधु ने 4 ओवर में 23 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया। जी हाँ, पाकिस्तान का टारगेट 161 टू विन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ एंड क्लब कराची में पाकिस्तान और विंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल, और पाकिस्तान की टीम को 161 रन जीत के लिए दरकार हैं। अब से थोड़ी देर पहले वेस्ट इंडीज़ की इनिंग्स ख़त्म हुई और ये दोनों पाकिस्तान की ओपनर्स ग्राउंड में जाती हुई, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। अभी तो इतना जल्दी है to say how we can compare them, but I have to see wait and see how they bat. The bowling standard was not that great, I'm sorry to say. ये सिद्रा नवाज आपकी स्क्रीन पर 34 इन्होंने मैचेस खेले हैं। सिद्रा नवाज पाकिस्तान की ओपनर। Can we see it again, please? So I think some little bit Javeria Khan is she's the right hand batsman. I know her. 85 matches, 1,487 runs. पाकिस्तान आज 7 T20 इंटरनेशनल खेल रहा है और 85 मैच जवेरिया ने खेले हुए। सुलेमान जो पहला ओवर शुरू कर रही हैं, तो एक स्लिप है, एक गली में फील्डर है, एक पॉइंट पर फील्डर है। पहला ओवर कवर्स की तरफ से खेलते हुए पाकिस्तान की इनिंग्स का पहला रन बना, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है क्योंकि मजीद 160 रन पाकिस्तान की टीम को दरकार है। सिकंदर बख्त साहब, especially in the initial overs, they have to score quick as possible and save the wickets too. विंडीज़ की टीम 2016 की वर्ल्ड T20 की चैंपियन, और लास्ट ईयर उन्होंने सेमीफाइनल खेला अपने ही मुल्क में। इस बार फिर गेंद कवर्स में से खेलते हुए 1 रन हासिल किया, तो काफ़ी क्वाइट स्टार्ट है सिकंदर बख्त साहब। That's initial overs. Well, as far as the bowling is concerned, it's very normal. तो पहला ओवर खत्म हुआ, पाकिस्तान 2 बगैर किसी
Well, Bhatti, this is the difference between the both sides. You must have seen the Windies are very powerful. This ball was very short, should have been dispatched to the cover boundary, point boundary, or pulled towards the mid wicket. But our batters could not do that, and they are just depending on the singles. कॉर्नरल जो हैं वो शॉर्ट बॉल करा रही हैं, लेकिन उतने मज़ेदार स्ट्रोक्स खेल नहीं सक रही पाकिस्तान की ओपनर्स। तो 2 ओवर्स खत्म हुए, 6 रन्स बगैर किसी नुकसान के। This is the first positive shot, but you can see the difference of physical strength. That's the difference between the two sides. जी हाँ, पूरी कुव्वत वाला शॉट, लेकिन बाउंड्री लाइन से बहुत पहले गेंद गिर गई और सिर्फ 2 ही रन्स बन सके। चौथा ओवर शुरू हो रहा है पाकिस्तान की इनिंग्स का। इस बार जोरदार शॉट और मिड विकेट बाउंड्री से बाहर जाती हुई गेंद, तो बिलाखिर पाकिस्तान की टीम पहला चौका मारने में कामयाब हुई। I think it's Javeria who pulled this ball a little bit short. He pulled it towards the square leg, but still the strength is missing. That's the big difference. See, the short ball, she pulled it towards the square and the mid-wicket area for a 4, and the strength is still missing. That's the big difference between the two sides. अगर ये गेंद हम दोबारा देख सकें तो ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच गेंद गिरी थी, जिसको बैट्समैन ने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया। Out. और ये कॉट बिहाइंड, तो पहली कामयाबी वेस्ट इंडीज को। Well, outside the off stump, Nida went for a big one, got the outside edge straight to the keeper. She took a good catch, and as I said, the slip fielder is very important. Initially, as you see, that ball was pitched up outside the off stump. Nida went for a big hit, got the outside edge straight to the keeper. तो निदा आउट होकर जाती हुई पवेलियन में 14 रन पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी। बिस्मा मारूफ 92 इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा रखती हैं। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम की कैप्टन बाएं हाथ से बैटिंग करती हैं। तो पहली गेंद खेली बिस्मा मारूफ ने। 4 ओवर्स खत्म हुए, 14 पर 1 पाकिस्तान। Well, this time she found the gap. It's going towards the square leg. The fielder is running, and they're going to get the third one, running fast, and they got 3. कमजोर थ्रो का भरपूर फायदा उठाते हुए 3 रन हासिल किए, लेकिन चौके अब भी जरा मुश्किल से लग रहे हैं। Good shot, very good shot. It's going through the point boundary for 4. Lovely shot. ये पहला पॉजिटिव शॉट है पाकिस्तान की इनिंग्स में, और बिस्मा मारूफ ने चौका मारा है। 5 ओवर्स खत्म हुए, 21 पर 1। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी और सिकंदर बख्त। और नए ओवर का आगाज चौके के साथ किया है बिस्मा मारूफ ने। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज, जवेरिया का ये दूसरा चौका है। तो अब जबकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान यहाँ साउथ एंड क्लब में 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच जारी है। 161 रन के हदफ के ताकुब में 5.1 ओवर के बाद पाकिस्तान 25 1 विकेट के नुकसान पर कदमों का इस्तेमाल किया और जोर लगा दिया इस बार वेस्ट इंडीज़ की बॉलर ने, और गेंद फाइन लेग पर बाउंड्री लाइन के बाहर। वाइट के 4 रन मिलेंगे पाकिस्तान को। और कराची में 14 मई 1988 को जवेरिया पैदा हुई। उनका 86वां T20 इंटरनेशनल मैच है। 1487 रन इनके क्रेडिट पर है। एक मरतबा फिर तैयार हुई और इस बार जोरदार तरीके से खेलना चाहती थी जवेरिया, और आउट होकर वापस जाना होगा जवेरिया को। कॉट बिहाइंड। तो दूसरी कामयाबी वेस्ट इंडीज की टीम ने हासिल की है। 32 पर पाकिस्तान का ये दूसरा विकेट,
और इरम जावेद आउट होने वाली पहली बैटर थी और अब आउट होकर बोझल कदमों के साथ जवेरिया वापस लौटती हुई पाकिस्तान विमेंस टीम की फॉर्मर कैप्टन इस गेंद को ड्राइव करने के लिए गई थी और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विंडीज की कैप्टन के हाथों में, जो कि विकेटों के पीछे एज अ विकेट कीपर मौजूद है। बिल्कुल जवेरिया के पांव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिले, अपनी ही जगह से खेलती हुई 19 रन्स बना के 19 बॉल्स पे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100, बोल्ड बाय कॉर्नल, ब्यूटीफुल कैच बिहाइंड द स्टंप्स। और उमैमा सुहेल आने वाली नई बैटर हैं और अब वो पार्टनर बनी है बिस्मा मारूफ की, जो उनकी सीनियर पार्टनर हैं, कप्तान हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं। व्हाट अबाउट उमैमा सुहेल? बिल्कुल उमैमा सोहेल ने अपना डेब्यू किया अभी हाल में, जब मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने सीरीज़ खेली थी, उससे पहले हम बांग्लादेश से खेले थे। वेरी इंप्रेसिव, वो ऑनलाइन स्ट्रीम हुई थी। और इसको कहते हैं डॉली, और कैच ड्रॉप कर दिया है विंडीज की कैप्टन ने विकेटों के पीछे। मरीजा राय थोड़ा सा उनके बॉडी से आगे ये बॉल था जिसको उन्होंने का शॉट उन्होंने खेला, अभी तो उनकी आंखें भी नहीं खुली थी और पहली स्लिप के सामने गई मरीजा राय, और अगर वो ये कोशिश नहीं करती तो मेरा ख्याल है एक सिंपल कैच होता फर्स्ट स्लिप में। बिल्कुल स्लिप के सीधा हाथ में जा रहा था ये, बट अगर आप नोटिस करें तो उमैमा के भी लैक ऑफ फुटवर्क की वजह से दूर बॉडी से खेल रही हैं। 7 T20 मैचेस खेल चुकी है और इनका हाईएस्ट स्कोर 43 है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आसिफ याकूब इस मैच के फील्ड अंपायर जिन्होंने इशारा किया कि पावर प्ले नंबर 2 ऑन। डॉटन एक मरतबा फिर आई, बिस्मा को गेंद की और बिस्मा ने इस गेंद को मोड़ दिया है डीप मिड विकेट की तरफ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बिस्मा का बेहतरीन शॉट डॉटन की पेस को यूज़ करते हुए, थोड़ा सा लो रहते हुए उन्होंने पुल शॉट खेला। इसी किस्म की बैटिंग करनी पड़ेगी। और जैसे ना आपने उन सारे शायकीन की बात की जो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, ये सारे वो लोग इंस्पायर होने के लिए आए और उनको अपने सुपरस्टार्स को खेलने के लिए दिख रहा है। सो वंडरफुल इनिशिएटिव बाय जियो सुपर टू टेलीवाइज ऑल दीज 3 T20 मैचेस। अगर हम सिंगल्स डबल करते रहें तो 6 रन पर ओवर तो आपके वैसे ही हो जाएंगे। सो आई थिंक वील हैव टू वर्क ऑन दैट अ लिटिल और बिट। डॉटन की इस गेंद को निकाल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। इस ओवर में ये दूसरा चौका। तो बिस्मा मारूफ अब इस चौके के साथ डबल फिगर में पहुंचती हुई 13 रन पर पहुंची। एंड आफ्टर 7 ओवर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम 38 for 2। और ये मार्कोल्स पाकिस्तान खवातीन टीम के कोच, न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है। इस बार सामना करेंगी उमैमा सुहेल और उमैमा ने गेंद को उठा दिया है, हवा में गेंद है, 1 रन बना और बहुत ही शानदार कैच, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट, अनबिलीवेबल, absolutely unbelievable, beautiful catch in the outfield, and that just goes to show the standard of women's cricket internationally has risen completely. कॉर्नल की ये दूसरी विकेट और उमैमा ने मिड विकेट की जानिब ये खेल दिया था। एक पॉइंट पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इजी 2 हो जाएगा, बट फील्डर की वो एफर्ट, ये आप प्रीप्ले देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचा गया था, काफ़ी दूर भागना पड़ा था। टेकन इट टू हर लेफ्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोलिंग कैच, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ग्रेट एथलीट। और उमैमा सुहेल 3 रन बनाने के बाद लौटती हुई, कॉर्नल ने उनका विकेट लिया और नाइट का अमेजिंग एफर्ट कैच था और 46 for 3 आफ्टर 7.4 ओवर पाकिस्तान खवातीन टीम। बिस्मा मारूफ 46 पाकिस्तान की खवातीन टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर, और अब भी एक लंबा सफर तय करना है और 161 रन के हदफ के ताकुब में। और इस बार बिस्मा मारूफ ने गेंद को उठा दिया है, फील्डर यहां पर मौजूद नहीं है और ये 4 रन होंगे और हो गए। तो शॉट के साथ ही पाकिस्तान की खवातीन टीम के 50 रन मुकम्मल हुए हैं। 8 ओवर के बाद पाकिस्तान खवातीन टीम का स्कोर 50, 3 विकेटों के नुकसान पर। और राइट आर्म लेग स्पिनर फ्लेचर गेंद करेंगे इरम जावेद को, और इरम जावेद ने गेंद को उठा दिया है, फील्डर के सर के ऊपर से दौड़कर जाना होगा फील्डर को और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब उन्होंने डाइव करते हुए गेंद को रोकने की कोशिश की। और यहां पर अब देखना होगा कि अंपायर क्या फैसला करते हैं और उनका इशारा कि ये 4 रन। तो वेलकम बाउंड्री इरम जावेद के लिए, जो कि आई हैं बैटिंग करने के लिए उमैमा सुहेल के बाद। ये उनका शॉट था और पावर हिटर के तौर पर अगर ये कहा जाए इस खवातीन टीम में ये शामिल हुई हैं तो कहना गलत नहीं होगा। 26 दिसंबर 1991 को लाहौर में पैदा हुई हैं। ये इनका 22वां T20 इंटरनेशनल मैच है। 17 नॉट आउट इनका बेहतरीन स्कोर है, 104 रन इनके क्रेडिट पर है।
और इरम जावेद ने कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज से निकलकर खेली है, एक रन बना, दूसरे रन के लिए वापस मुड़ी और 2 रन तक बाद महदूद रहेगी। तो 2 रन का इजाफा। 57 पाकिस्तान खवातीन टीम 3 विकेटों के नुकसान। 30 साल अनीसा मोहम्मद की उम्र है, ये मैच नंबर 100 है उनका। और इस बार इरम जावेद ने गेंद को निकलकर ऊंचा खेला और कॉलन ने एक आसान सा कैच लेकर इरम जावेद को पवेलियन लौटा दिया है। जी हाँ, फीट यूज़ करें तो ज़रूर उन्होंने, बट नॉट टाइमिंग द बॉल वेरी नाइसली। मिड ऑफ भी ऊपर था, उसके ऊपर से आसानी से खेल देना चाहिए था। इरम जावेद थोड़ा सा रश करती हुई नज़र आई, नॉट गेटिंग टू द पिच ऑफ द बॉल और बॉल को हवा में उठाते हुए बहुत ईजी कैच कवर की जानिब से। एंड पाकिस्तान लूज येट अनदर विकेट। 57 for 4 now. Iram Javed goes for 7, facing only 8 balls, caught by Connell, bowled by Anisa Mohammed. As Alia Riaz walks in onto the field to join the skipper Bisma Maroof. Come on, twin swing. Come on, twin swing. Come on. ये इरम जावेद जो अनीसा मोहम्मद के पहले ओवर में जोरदार शॉट खेलती हुई कॉलन के हाथों कैच आउट हुई हैं। अनीसा मोहम्मद दाएं हाथ से गेंद करने वाली राइट आर्म ऑफ स्पिनर, और इस बार अपने बल्ले को सीधा किया और गेंद को थर्ड मैन की तरफ निकाल दिया है 4 रन के लिए बिस्मा मारूफ ने। तो पहला चौका अनीसा मोहम्मद के इस ओवर में। 61 पाकिस्तान की खवातीन टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। ये 10वां ओवर है और अब 10 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा अरूज, और पूरे 100 रन इतने आसान नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल 10 रन की एवरेज से हमें करने पड़ेंगे, काफ़ी टफ रहेगा, बट ब्यूटीफुल इम्प्रोवाइजेशन बाय बिस्मा मारूफ टू सिक्योर अ बाउंड्री देयर। और इस किस्म के हमें इम्प्रोवाइज करके खेलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं इस टोटल को रीच करें। पाकिस्तान का स्कोर कार्ड: सिदरा अमीन 2 रन बनाने के बाद, जवेरिया 19 रन बनाने के बाद, उमैमा सोहेल 3 रन बनाने के बाद और इरम जावेद 7 रन बनाने के बाद आउट हुई हैं। Meanwhile, another flighted delivery by Anisa Mohammed, using her experience here. Well, Pakistani batters are batting well. They are playing the good shots, good-looking shots, timing it well, but they don't have that strength, as I said, to cross the fence or hit a 6. Played straight this time, straight to long off and taken safely. Pakistan lose one more. It's the 5th batter down. And this is what's missing in from the Pakistan batters. They don't have the strength to cross the fence. That's the whole problem. Otherwise, they are playing well. And once again, using her feet, trying to cross the long off boundary, but straight in the hand of the fielders. Almost 20 yards inside. The Windies batting first have set some serious standards for the Pakistani batters. Alia gone for 6, Pakistan are 71 for 5. So Pakistani batters are batting well, but they have to hit 6s and 4s now. Oh, tried to play it towards the onside, but missed it. One more for Pakistan. Nida Dar on crease. Keep going, girls. Ayman not looking happy with herself. Ow! Come, son. Another single, quick one. And it's a appeal for a run out. Good direct hit. Windies' brilliance continues on the field. Another great effort. Lightning of a throw. Ooh, this is going to be very close. It's going to be is she on the line or she's out? I think so. It looks like Given by the umpire. Pakistan lose one more. Nidadar was looking busy out there in the middle. that was a brilliant piece of fielding. Good direct throw by the fielder. Nida is out for 2. Sana Mir is the new man. Sana Mir joining Bisma Maroof. New better for the Pakistan. She's very senior. I have played against her over here. They used to come and play against our South End team. She's a very experienced player. Let's see.
flighty delivery, getting some turn there. Inshan Ali used to play for Trinidad. She's been really inventive. Joining me in the comm box is Uruj Mumtaz. I saw the scorecard right there in front. Very nicely paddled down to the leg side, fine leg boundary. Might just trickle away all the way to the boundary. Good effort there, and I think Bisma will secure another 3 runs. Might just go up to the third umpire to check whether that was a boundary. Absolutely brilliant fielding. That's the paddle sweep that we can see on screen. Just goes to show the standard of athleticism at the international level. That looks like a good save there. Sanam batting slightly out of a crease there, lobs it straight to the cover fielder. Connell takes another catch, and Pakistan lose yet another wicket. 16 overs, 84 for 7. Sana walks off the field there. The new batter going in is Sidra Nawaz, the keeper. So Pakistan are in trouble. 7 down on 84. Bisma Maroof still fighting it out in the middle. Sidra Nawaz joining her. Beautifully struck through to the cover. Deep cover fielder running. That should be 2, but no, wisely against the 2. Marissa not happy about something there on the boundary. That's clean bowled, huge heave across the line, and that's yet another wicket for the champion for the day, Doughton, as Pakistan are being bowled out, almost bowled out. 85 for 8 now. Huge heave across the line, knocking off stump. Sidra Nawaz to fall. Not the best pitch to be playing across the line. The ball kept low there. It has been doing that since the beginning. Sidra Nawaz out for naught. It's 85 for 8. As the new batter walks in, Ayman Anwar, having played 13 T20 matches and not a lot of runs under her belt, obviously, as she bats in the tail. The feet not moving, nicely played again from the middle of the stumps down to fine leg for a single. Pakistan requiring 76 of 19 as Pakistan are 86 for 8 in 17 overs. That should be taken easily by the bowler. The catching of the West Indies has been absolutely spot on, except for one fumble behind the stump. It has been brilliant as Pakistan lose yet another wicket, 89 for 9. The Windies are having their fun there. They're close to winning the match. The party has already started for the Windies. She didn't look very stable, but she ended up catching it. A good hand-eye coordination, I guess, but they are superb athletes. And Bisma, we lose our captain for 38 from 37 balls faced, cotton bowled by Salman. Pakistan are slowly close to being bowled out, 89 for 9. Oh, brilliant stuff there by Salman. Brilliant. Just outstanding. And that is the final wicket for the Windies, taking the match convincingly. Scored 160 playing fairs, giving a target of 161, and Pakistan always looked like they were in trouble chasing a mammoth total. As we see the final scorecard for Pakistan, Javeria scoring 19 and Bisma, the one to fall at the end, scoring 38 as Pakistan were bowled out for 89 in the 18 overs. A disappointing scorecard all the way except those 2 batters. Danish, if we notice that there's plenty of balls that were played without any strike rotation. So that's something that we can kick on from. True, Ruj, when just 2 players make it to double figures, that actually tells you the story of the innings. Having said that, the Windies bowled absolutely brilliantly.
They constricted Pakistan. Salman bowled 3 overs, got 2 wickets. Connell bowled 4, got 3 wickets. And Anisa bowled 4, got 2 wickets. And if we move on to the match summary, Pakistan getting bowled out for 89, enabling West Indies to win by a massive 71 runs, going 1 up in the series. Doughton, without a doubt, star of the match, 90 not out, and Nation scoring a first T20 half century with 50 not out. It's Mr. Iftikhar Shalwani to give the trophy to a player of the match. And without any doubt, Deandra Doughton with her explosive 90 runs and 1 wicket.